answer to unlock your law question in context to present COVID-19 pandemic situation. Organized by Asian Institute of Human Science and Development, Lucknow. I would like to welcome all the family members of AISD, dear students and participants of this event. On behalf of Asian Institute of Human Science and Development, I would like to say about few lines about this program. Asian Institute of Human Science and Development have a higher degree of initiative and obligation in their involvement and ready to work as human beings to turn over common suffering into hope for the future every time. Under the title, How Can Humanity Be Saved? As always, this would be happened by our extempore leader, founder, and director, Professor Uday Pratap Singh sir. I must express a sincere gratitude and welcome to sir for giving a chance again for live session on present relevant topic. How can humanity be saved from in context of present COVID-19 pandemic situation? So welcome you sir. As we know, the emergence of the novel coronavirus disease 2019 COVID-19 is a serious global public health problem. The majority of population affected within all age groups with many other diseases. Number of deaths increasing day by day. The effect of this pandemic situation has become in form of mental health crisis in every case. Ultimately, there is no relevant option to take this chain break of viruses and diseases. The fear of and future uncertainty take place in our mind and also in life. So this is the right time we have just think and plan how to overcome this situation themselves in life. For this, I, Dr. Neetika, feel immense pleasure, extremely honored, and also feel privileged for immense renowned divine presence, Rajyogi GK, Dr. Smita Didi ji, truly feel deep gratitude to Didi for this live session. Didi has a powerful, clear vision to bring science, psychology, and spirituality together in the service of developing world sovereigns throughout the self sovereignty. Didi practicing meditation technique since 40 years. Presently, she is a Raj Yoga teacher at Shantivan Brahma Kumaris, HQ Abu Road. Didi has awarded more than 100 plus national and international awards like that. Best Concept Academic Award for Documentary Talk Show Hindi Film Naritva Darshan. Amazing Outstanding Distinguished Spiritual Entrepreneur Award, Ambassador for Peace Award, Corona Warrior Award, World PhD Chakra Award, Nari Chetna Award, and many. He is the author of book Key to Unlock Exam Express, and she is also known for her engaging high energy style, practical wisdom, and sense of humor, and contribute worldwide deep collection of consciousness of peace, love, and spiritual power. So I would like to request Didi and heartily welcome to take over this session. Om Shanti. You want me to take over the session? Yes, Didi. Because the question today it is question answer session, right? Om Shanti. I express my deep gratitude to Divine Brother Dr. Uday Pratap ji. Thank you very much for this golden opportunity. And also Dr. Neetika ji. Well, as this session is regarding your questions and divine answers to your questions are like the locks,
And in this lockdown, we want to unlock. So you may start with your questions, please, and then we will answer them. हेलो दीदी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जो इस टाइम जैसी सिचुएशन चल रही है, इस टाइम में व्यक्ति या कोई भी हो, सबसे ज्यादा बीमारी से तो ज्यादा परेशान है, लेकिन वो अपनी थिंकिंग कैसे पॉजिटिव रखे। और बस व्यक्ति मतलब अपने आप से परेशान है, प्लस ये अपनी सोच, अपनी ये जो अंदर की पावर, वो कैसे हील करे। हाँ जी, राजीव जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि अभी चारों तरफ इतना नेगेटिव है, तो उस समय पर हम पॉजिटिव कैसे रहे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि पॉजिटिविटी हमारा नेचुरल स्वभाव है। जब हमारी इच्छा हो रही है कि हम पॉजिटिव रहें, इसका मतलब कि हमारा एक्चुअल में नेचुरल स्वभाव ही पॉजिटिव है, इसलिए इच्छा उत्पन्न हो रही है। आप देखिए कि आपने अगर चाय की आदत है आपको पीने की, और अगर सामने चाय का कप है, तो आप क्या करेंगे? आप उसको नेचुरली उठा करके पी लेंगे, क्योंकि आपको आदत है पीने की। इसके लिए एक नेचुरल स्वभाव है। अब वैसे ही चारों तरफ नेगेटिव है, उसमें हम रहना चाहते हैं पॉजिटिव, तो इसका मतलब कि हमारा ओरिजिनल स्वभाव ही पॉजिटिव है, इसलिए हमें नेगेटिव पसंद नहीं है। जो हमारा ओरिजिनल नेचर है वही हम चाहते हैं कि वही वापस हो। तो इसलिए हमें ये पक्का अंदर से घोट लेना चाहिए कि हमारा नेचुरल स्वभाव है पॉजिटिव रहना, और हम हैं ही पॉजिटिव अंदर से। बस वो एक स्मृति अगर हम लेकर आ जाए कि मैं पॉजिटिव हूं और मेरा नेचर है पॉजिटिव रहना, तो ऑटोमेटिकली हम उस नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढेंगे। अब इस कोरोना का सिचुएशन अगर हम देखते हैं, तो इस कोरोना से हमें क्या क्या लेसन सीखने को मिले। अगर वो एक क्वेश्चन अपने आप को पूछे, तो ऑटोमेटिकली हम वो पॉजिटिव रह पाएंगे। हमारे आगे सारे पॉजिटिव समाधान जो होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, वो आ जाएंगे। तो आप बताइए कि इस कोरोना के द्वारा आपको क्या लेसन सीखने को मिला? दीदी, मुझे तो ये कोविड-19 के द्वारा आप जितना अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखेंगे या अपने अंतरात्मा को पॉजिटिव रखेंगे, वो आपके लिए बेनिफिट है और आपके जो साथ में उनके लिए बेनिफिट्स है। एग्जैक्टली। हाँ जी। कोरोना ने हमें बहुत से लेसन्स दिए हैं। पहला लेसन ये है कि सूक्ष्म ज्यादा ताकतवर होता है स्थूल की तुलना में। जो हमें सीन फोर्स है, उससे अधिक ताकतवर अनसीन फोर्स है। एक कोरोना को दिखाई नहीं पड़ रहा, एक वायरस है, और उसकी जो फैमिली है बड़ी स्ट्रांग है और जल्दी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और मल्टीप्लाई होकर के वो मिलियंस ऑफ कोरोना वायरसेस एकत्र हो जाते हैं, और वो जो उसके जो क्लस्टर्स हैं हमारे बॉडी में जा करके, जो हम चूंकि स्थूल हैं, हमसे भी बड़े कुछ भीम का प्राणी भी है, एलिफेंट है, बहुत सारे हैं, व्हेल है, लेकिन हम भी बड़े आकार वाले प्राणी हैं। तो हम लोग अक्सर क्या होता है, जो स्थूल में ज्यादा यकीन करते हैं कि जो स्थूल है या जो मेगा थिंग्स हैं, जो बड़ी हैं, वो ज्यादा, या मैक्रो लेवल पे हम ज्यादा सोचते हैं, माइक्रो लेवल पे कम सोचते हैं। तो कोरोना ने सबसे पहले ये बहुत बड़ी सीख दिया है कि हमें माइक्रो लेवल पे सोचना होगा। जो कहिए कि जो नहीं दिखाई पड़ता है, उस ताकत को हमें देखना होगा। बहुत अच्छी बातें आपने बताई। और
यूनिक बातें बताई आपने कि आमतौर पे हम किसी से भी सुनते हैं कि क्या लेसन सीखने को मिले, तो रूटीन लाइफ के लेसन्स बताते हैं और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स होते हैं। जैसे कई कहते हैं कि भाई हमें कोरोना ने सिखा दिया कि हमें खुद का काम खुद ही कर लेना है ना। तो इस प्रकार से बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी अच्छी बातें लोग बताते रहते हैं। और आज आपने बहुत ही यूनिक बात बताई कि कोरोना ने हमें ये सिखाया कि जो अनसीन फोर्स है वो बहुत पावरफुल फोर्स है, और आत्मा एक ऐसी अनसीन फोर्स है जो इन सूक्ष्म नेत्रों से तो क्या, इन आंखों से तो क्या, लेकिन हम उसे साइंटिफिक कोई भी माइक्रोस्कोप आदि से भी नहीं देख सकते। जो वायरस को तो वैसे भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से भी देख सकते हैं, लेकिन आत्मा को तो कोई भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से भी नहीं देख सकते। इतनी सूक्ष्म ये आत्मा का स्वरूप है, और उसको हम अपने बुद्धि रूपी चक्षु, ज्ञान चक्षु से ही उनको देख सकते हैं। और आत्मा का बड़ा होना ये नहीं होता, क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है वो बहुत ही सिंपल है। सिंपल इन द सेंस कि अगर आप देखेंगे कि जो सिंपल ज्योमेट्रिकल फॉर्म होता है वो कौन सा होता है, एक लाइन को हम सिंपल ज्योमेट्रिकल फॉर्म नहीं कहेंगे, लेकिन एक डॉट को जरूर कहेंगे। अर्थात इट हैज नो डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वेट वगैरह कुछ नहीं है। डॉट, जस्ट वन डॉट, सिंपल थिंग। जो एक बच्चे को भी अगर पेंसिल पकड़ा दो तो वो सिंपल सा डॉट बना देगा। तो वैसे ही आत्मा एक इतनी सूक्ष्म डॉट है जिसका कोई ज्योमेट्रिकल डायमेंशन नहीं है। इसलिए आत्मा बड़ी या छोटी नहीं होती, आत्मा की साइज तो वही रहती है, लेकिन आत्मा के अंदर की शक्तियां जब बढ़ जाती हैं और पॉजिटिव एनर्जी जब बढ़ जाती है, और एक से लेकर के एक जुड़ करके जब विश्व की सर्व आत्मा इकट्ठे होकर के हम वो एक पॉजिटिव थॉट करते हैं एक ही समय पर, तो वो इस जो अनसीन वायरस कोरोना है उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तो इसलिए इस अनसीन वायरस की शक्ति होगी बहुत बड़ी, लेकिन हमारी आत्मा की पॉजिटिव शक्ति के आगे वह भी फेल है, तो उसकी भी चलती नहीं है। इसके लिए कोरोना के लिए कहते हैं ना कि कोरोना खुद नहीं आता है, लेकिन हम बुलावा देते हैं ना तब वो आ जाता है। हम प्रिकॉशंस नहीं लेते तब वो आ जाता है। इसके लिए इस कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन में हमें पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या हर पल हर कदम पे हमें क्या लेसन सीखने को मिल रहा है, अगर वो हम उसके ऊपर फोकस करते जाएंगे तो हम बहुत सहज हम अपनी पॉजिटिव अप्रोच के द्वारा, दृष्टिकोण के द्वारा इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो इसके लिए पॉजिटिव नजरिया रखना तो बहुत बहुत जरूरी। और थैंक्स टू कोरोना, जो आपने कहा कि एक अर्बन लाइफ में हमें एक लेसन सिखा दिया, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने में ही बहुत जो है अपना समय दे रहे थे। और थैंक्स टू कोरोना कि उसने हमें स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कैसे हमारा अच्छा हो ना, उसके लिए उसने हमें समय दिया ये सोचने के लिए। लॉकडाउन के पीरियड में एक साथ परिवार के साथ रहने का मौका दिया कि आपस में एक दूसरे को हम सुने और समझें। तो इस प्रकार से हमारे जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अर्थात जो हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए हमें समय दिया, तो ये एक बहुत बड़ा लेसन हमें सीखने को मिलता है। कोई भी तूफान हो, आज ये कोरोना है, कल दूसरा हो जाए, परसों तीसरा हो, कोई भी तूफान हो, हर तूफान अपने साथ एक तोहफा जरूर लेकर आता है। बस हमारा देखने का नजरिया चाहिए कि हम उस तूफान में भी उस तोहफे को देख रहे हैं। अगर हम उस तोहफे को देख रहे हैं तो हम एंजॉय करेंगे, और अगर हम तूफान को ही देखते जाएंगे तो वो तूफान हमें और भी ज्यादा बड़ा नजर आएगा। दिन प्रतिदिन हमें लगेगा कि अरे ये तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, और वास्तव में तूफान हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हाँ तोहफा देखना ये हमारे कंट्रोल में है। तो इसके लिए जो कंट्रोल में नहीं उसको जितना देखेंगे तो वो ऐसा लगेगा जैसे वो हमारे पर हावी होता जा रहा है, हम उसके वश होते जा रहे हैं, हम हेल्पलेस होते जा रहे हैं।
और एक भय रहेगा कि पता नहीं क्या होगा, कब जाएगा, कैसे होगा। लेकिन अगर हम उसी तूफान में वो तोहफा देखने का नजरिया अडॉप्ट कर लें और जैसे ही उस तोहफे को देखना शुरू कर देंगे, तो फिर एक अंदर में एक एहसास होगा, एक खुशी होगी, एक आनंद होगा, एक संतुष्टता होगी, एक प्राप्ति का अनुभव होगा, जिसको कहते हैं कि हाँ मैं भरपूर हूँ, अबेंडेंस है मेरे पास, एक कमी की महसूसता नहीं होगी। और उससे आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी, उससे फिर हेल्पलेसनेस नहीं रहेगा। लेकिन कंप्लेंट करने के बजाय हम एक ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, हमारे अंदर से एक शुक्रियाना निकलेगा हर एक के प्रति, कोरोना के प्रति भी और परमात्मा के प्रति भी। नहीं तो आज इंसान इतना हताश हो जाता है परिस्थिति को जब देखता है तब, कि उसकी उंगली भगवान की तरफ भी उठ जाती है कि ये भगवान यही मिला क्या तुझे, आखिर हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। तो इस प्रकार से जो है वो कहते हैं ना कि भगवान को भी नहीं छोड़ते ब्लेम कर गेम में। तो ऐसा एक नेगेटिव अप्रोच कब होता है, जब हमारा दृष्टिकोण या हमारी दृष्टि परिस्थिति के ऊपर है। लेकिन परिस्थिति से हट करके अगर हम स्वयं के ओरिजिनल आदि अनादि स्वरूप आत्मिक स्थिति में रहते हैं कि परिस्थिति से बड़ी मेरी ये आत्मिक स्थिति है, स्वस्थिति। और उस स्वस्थिति में जब हम रहते हैं तो स्व अर्थात में आत्मा, और आत्मा की जो नेचुरल स्थिति है वो है पॉजिटिव, वो है शांति, वो है प्रेम, वो है आनंद, वो है ज्ञान स्वरूप, वो है शक्ति स्वरूप और वो है आनंद स्वरूप। तो जब इस नेचुरल गुण में अपनी स्वस्थिति में हम उसका आनंद लेते हैं तो क्या होता है, तब वो तूफान में भी वो तोहफा दिखाई देता है। अर्थात जब हमारा माइंड साइलेंस हो जाता है, शांत स्वरूप हो जाता है, तब हमारी बुद्धि काम करना शुरू करती है सही डायरेक्शन पे। वो एक इंट्यूशंस हमें अंदर से आता है, हमारे अंदर की आवाज बोलती है कि ऐसे करो, वो समाधान लेकर आती है और हम वो अपने इंट्यूशंस को सुन सकते हैं और फिर हम उसके ऊपर अमल करते हैं। इस पर एक बहुत अच्छी कहानी याद आती है कि एक बार एक बहुत ही गरीब व्यक्ति, किसान व्यक्ति, वो अपनी मेहनत मजदूरी करने के बाद उसने बहुत अपना अच्छा धन वगैरह कमाया था। तो उसने सोचा कि चलो मुझे एक घड़ी की जरूरत है, तो अपने जन्मदिन पर उसने एक घड़ी खरीदी। अब थोड़े समय के बाद, थोड़े दिनों के बाद उसने देखा कि अचानक से उसके हाथ में घड़ी नहीं है। वो बड़ा उदास होकर के बैठ गया कि मैंने मस्त अपने जन्मदिन पे इतनी महंगी चीज खरीदी और पता नहीं वो घड़ी कहाँ चली गई। और वो हमेशा जो है शाम को गांव के बच्चों के साथ बैठता था और बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाता रहता था। तो वो बच्चों ने उस दिन देखा कि अरे आज बच्चा को क्या हो गया है, आज बहुत उदास बैठे हैं। तो पूछा तो कहा कि वो घड़ी गायब है। तो सब बच्चे जो है बोले कि आप कहाँ थे, क्या थे, आप बताओ, हम वहीं जाकर के ढूंढ के आते, कहीं गिर गई होगी या कुछ आपने रख दी होगी तो वहीं रह गई होगी। तो वहां पे गए बच्चे पर किसी को कुछ मिला नहीं। फिर एक बच्चा था उसमें से, उसने बोला चाचा आप चिंता नहीं करो, मैं आपके लिए वो ढूंढ के लाता हूँ। और वो गया और वो जंगल में जहाँ पे खेती बाड़ी में जहाँ वो चाचा जाते थे, किसान जाते थे, वहीं पे जा करके वो क्या किया, उसने अकेले गया, बोला मैं अकेले ही जाऊंगा। और वहां अकेले जा करके वो एक पेड़ के नीचे वो एकदम आराम करने बैठ गया। और जैसे ही वो ऐसे साइलेंस में बैठा था पेड़ के नीचे, तो वहां पे साइलेंस में उसने देखा कि उसको टिक 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 ऐसे आवाज सुनने में आई। और जैसे उसको वो आवाज सुनने में आई टिक टिक टिक, बस वो उसी दिशा में फिर से उठ के जाना शुरू कर दिया और उसको वो वहां पे घड़ी मिल गई। खुशी खुशी लौटा और सब आश्चर्य हो गए कि सबको आश्चर्य हो गया कि अरे कैसे मिली आपको, कहाँ थी।
और तब उसने वो राज बताया कि कैसे उसको मिल गई ये घड़ी। तो इसलिए वास्तव में अगर जब हम साइलेंस में, एकांत में बैठते हैं, साइलेंस में जाते हैं, अपनी स्व की स्थिति के ऊपर हम स्थित हो जाते हैं, अपनी आत्मा की शांत स्वरूप स्थिति में हम बैठ जाते हैं, और परमात्मा जो सर्वशक्तिवान शांति का सागर है, उससे जब हमारा बुद्धि योग जुड़ जाता है, तो उस समय पर वो इंट्यूशंस टिक टिक करती है और हमें समाधान की ओर ले जाती है कि आखिर ये जो समस्या है उसका क्या समाधान हो सकता है। तो इसके लिए एकांत में, साइलेंस में, अंदर की ओर हमारी यात्रा हो, अंदर की ओर हम जाएं, गहराई में जाएं, और जितना सागर की गहराई में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहां बहुत शांति है, और वहीं पे रत्न मिलते हैं, वहीं पे आपको पर्ल्स, मोती, हीरे मोती मिलते हैं। लेकिन ऊपर देखेंगे तो बहुत लहरें हैं, एक के बाद एक लहरें हैं। तो इसके लिए आप कहें कि अरे ये सागर की इतनी सारी लहरें हैं, हम कैसे पार होगा, हमारी नदियां कैसे पार होगी, तो फिर तो क्वेश्चंस, डाउट्स, एंजाइटी, फियर हमेशा ही बना रहेगा जीवन में। लेकिन उन लहरों को नहीं देखते हुए, वो लहरें तो वहीं की वहीं है, रहेगी, बढ़ेगी भी, कम नहीं होने वाली है, सागर में लहरें बढ़ेगी भी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें उसकी गहराई में जाना है, घबराना नहीं है। लहरों को देख करके घबरा जाते हैं, परमात्मा हमें बताते हैं कि हमें इन मुश्किलों की, समस्याओं की लहरों में नहीं लहराना है, लेकिन हमें क्या करना है, ज्ञान की गहराई में जाना है, ज्ञान के सागर की गहराई में जाना है। और उसकी जब हम गहराई में जाएंगे तो वहां पे शांति की अनुभूति करेंगे, और उस शांति में ज्ञान के हीरे मोती हमें मिलेंगे, जिससे हमारी खुशी बढ़ेगी। और जितनी हमारी खुशी बढ़ेगी उतनी ही हमारे ह्यूमैनिटी पावर बढ़ेगी। आत्मा की जितनी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आत्मा जितनी सशक्त होगी, उतना ही उसका इफेक्ट बॉडी पे होगा, और बॉडी की भी इम्यूनिटी लेवल होगी। और जैसे ही इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी तो फिर कोरोना तो क्या, कोई भी वायरस का असर फिर नहीं हो सकता है। तो इसलिए इस प्रकार से पॉजिटिव दृष्टिकोण रखते हुए और लेसन्स क्या सीखने को मिलते हैं उसका मनन चिंतन करते हुए, गहराई में जाकर के, एकांत में, शांति की अवस्था में जाकर के, परमात्मा जो शांति का सागर है उनसे बुद्धि योग जोड़ के हम उनके ज्ञान और उनके गुण और शक्तियों का हम अपने अंदर उनको धारण करते जाएं, उनको ग्रहण करते जाएं, उसका स्वरूप बने, और हम अंदर की अपनी इस दुनिया को, स्वस्थिति को बहुत ही पॉजिटिव और मजबूत करते जाएं, तो ऑटोमेटिकली बाहर की जो भी परिस्थिति है, कितनी भी बड़ी है, उसका न असर होगा, और वह एकदम जैसे कि छोटी हो जाएगी, जो ऐसा लगेगा कि जैसे एकदम पेपर टाइगर है, कुछ है ही नहीं, खेल की तरह महसूस होने लगेगा। ओके, और कोई, किसी को कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है? कोई पूछना चाहता है तो कोई भी पूछ सकता है, क्योंकि ये सेशन तो है ही आपके क्वेश्चंस, हमारे आंसर्स, है ना। तो आप अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन किसको जो पूछना है जरूर पूछिए। हाँ जी, कौन एक प्रश्न है? दीपिका जी है, डॉक्टर अनूप जी हैं। जी जी दीदी, मैं एक प्रश्न ये पूछना चाहती हूँ कि अभी तो जैसे अनसर्टेनिटी सब जगह है ही है, मतलब सभी के मन में चल ही रही है, वायुमंडल में ही है, फियर भी है तो एंजाइटी भी है, मेंटल हेल्थ क्राइसिस भी है, कहीं भी डेथ सुनाई पड़ रही है तो कहीं पे कोई अच्छा हो जा रहा है, मतलब कहीं से पॉजिटिव आ रहा है तो कहीं से निगेटिव आ रहा है। हमें अपने आप को ऐसी क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए? हमें तो ये पता है कि हमें पॉजिटिव रखना है, बट हाउ, है ना?
कैसे हम अपने आप को ऐसे सिचुएशन में संभालें, या हम अपने परिवार के लिए ऐसा क्या करें, या हम जो बाहर वायरसेस, हमें पता है कि डेस्क पे हाथ रखेंगे तो यहाँ भी वायरस आ सकता है, किसी से कांटेक्ट में आएंगे तो भी वायरस आ सकता है। ये लॉन्ग टर्म सिचुएशन बन गई है आज के समय में। हमने मास्क वेयर कर लिया, सैनिटाइज लगा लिया, हम लोगों से मिलते हुए भी डरे जा रहे हैं कि नहीं, अभी भी हमको मतलब अंदर से फीलिंग नहीं हो रही है कि हम सेटिस्फाई हैं कहीं पर। घर में कोई वर्क करने आ रहा तो उससे भी डर रहे हैं कि नहीं नहीं कहीं वायरस लेके तो नहीं आ रहा है ये। तो ऐसे में अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें, पहला तो यही आप हमें बताएं इसके बारे में, है ना। हाँ जी, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें हम आपको ये बताते हैं कि एक होता है डरना और एक होता है सावधान रहना, है ना। कई लोग जो है सावधानी बरतने को भी डर का रूप कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये अंतर कर लें, क्योंकि सावधान रहना तो बहुत जरूरी है, और सावधान रहने का मतलब ये नहीं कि हम डरते हैं इसलिए सावधान है, लेकिन सावधान इसलिए है क्योंकि आज कोई भी चीज, कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो उसके अगर सोल्यूशन लाना है तो उसके जो प्रिकॉशंस हैं उसको भी अपनाना जरूरी है। बिकॉज प्रिकॉशन, वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जितना हम प्रिकॉशंस लेंगे उतना हमारे लिए ही अच्छा है, और हमारे जो संबंधी है, हमारे रिलेटेड जो भी है, उन सबके लिए वो अच्छा है। इसलिए जो भी प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं, चाहे वो हम सैनिटाइज कर रहे हैं, चाहे वो हम मास्क पहन रहे हैं, चाहे वो हम सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, इन सभी प्रिकॉशंस को हम खुशी खुशी करें। उसको हम बोझ के रूप से नहीं करें कि अरे ये करना पड़ रहा है, हम तो ये नहीं कर पाते, हम तो वो नहीं कर पाते हैं, पहले जैसे नहीं कर पा रहे, नहीं कर रहे। परिवर्तन तो संसार का नियम है, हमेशा जो चलता आया वही अभी चलता रहेगा, ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए इसको एक्सेप्ट कर ले, खुशी खुशी से एक्सेप्ट करना, ये सबसे पहला स्टेप है पॉजिटिविटी की ओर बढ़ने के लिए। और अगर हम इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करके करेंगे तो एकदम लाइट रहेंगे, बोझ नहीं लगेगा। और जब हम लाइट रहेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सब करते हुए, मास्क पहनते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, सैनिटाइज करते हुए, हमारा माइंड जो है, हमारा ब्रेन जो है, बहुत क्रिएटिव है, और क्रिएटिविटी हमारी बढ़ती जाएगी कि ये सब करते हुए हम कैसे अपना कारोबार करें, कैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़े। वो क्रिएटिव वेज आते जाएंगे, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे वो पढ़ाई में है, चाहे वो करियर में है, चाहे एक हाउसवाइफ को अपने घर संभालने में है, किसी को भी कहीं पर भी अगर वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगा तो ऑटोमेटिकली उसको इंट्यूशन आएगा, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी कि कैसे इनोवेटिव वे से, नए तरीके से मुझे आगे बढ़ना है। और फिर जब उसमें कदम रखने के लिए उसकी वो जो भी नया है उसको आगे बढ़ाने के लिए भी उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, एक्सेप्टेंस, हैप्पीनेस और इनोवेशन, क्रिएटिविटी, ये स्टेप्स को हमें लेना है। इस पर अगर हम ध्यान देंगे तो हम अपने जीवन में प्रोग्रेस करते हुए पाएंगे। वो उसी हालात में, हालात वही है, सिचुएशंस वही है, लेकिन हमारी अंदर से प्रोग्रेस हम देख पाएंगे। थैंक यू दीदी। हम एक प्रश्न मेरे माइंड में आ रहा है आदरणीय बहन जी, कि लखनऊ यूनिवर्सिटी जहाँ को हम बिलोंग करते हैं, जहाँ पे एक प्रोफेसर हैं और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन साइंस के हम डायरेक्टर हैं, लेकिन हमारे बहुत से मित्र साथ छोड़ के चले गए। वो प्रभु श्री राम के श्री चरणों में स्थान को मिला होगा, हम प्रार्थना करते हैं। उन सभी लोगों ने प्रिवेंटिव केयर
और सारे जो भी इस समय आते हैं हमारे पास, बहुत सारे जो आयाम, जो एक्सेप्टेंस, वो सब किया। लेकिन जो सेकंड वेव ऑफ कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन ऐसी हुई कि वो सब करते रहे। वो पूरी सारे प्रिवेंशन करते थे, जो भी प्रिवेंटिव केयर्स हो सकते हैं, मेजर्स हैं, सबको उन्होंने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया, सालों उसमें रहे। लेकिन किसी न किसी मीटिंग में कहीं न कहीं जाते थे और वहां से या कहीं से वो ऐसा, ये सेकेंड वेव में जो स्ट्रेन आया, इस स्ट्रेन से उनको जान अपनी गंवानी पड़ी। और एक नहीं, पूरी पूरी यूनिवर्सिटी के 30-35 अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के 20 और 35 दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग, ये सब ऐसे लोग हैं दीदी जो प्रोफेसर लेवल के, टॉप लेवल के हैं, टॉप स्लॉट के लोग हैं, ज्ञानी हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इनका भी एक विजन है, सबको भी समाज में भी समझाते रहे कि ऐसा करना, ऐसा करना, लेकिन फिर भी वो इस चपेट में आ गए। तो हम आपसे ये प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि इसमें आप हमारा मार्गदर्शन करें कि ये जो इंटेलेक्चुअल या एलीट क्लास है, जो ये सब करता था, डिवाइन सोल में, डिवाइन पावर में भी यकीन करते हैं, उसके बावजूद भी उनको हाथ, जीवन जो है उससे जोखिम आ जाता है और जीवन से हाथ धोना पड़ता है। तो इसमें आप हमारा मार्गदर्शन करें कि ऐसे क्या हम मेजर्स अपनाएं या क्या करें जो इससे बचाव मिले। और अब सुन रहे हैं कि एक बायोलॉजिकल वेपन के रूप में चाइना बना रहा है कोरोना, या बहुत सारे उसने अपने जो बनाता चला जा रहा है। वर्ल्ड वार भी एक इसी लेवल पे कहीं ना कहीं हम लोग उतरना पड़ जाए। ये सब ऐसे हालात हैं जो चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो। अब पैरामेडिकल स्टाफ जो हमको समझाते हैं वो बेचारे इसके विक्टिमाइज हो जा रहे हैं। तो ऐसे क्या हालात, सभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, सभी ये उस मेजर्स को फॉलो कर रहे हैं। तो इन हालातों में मार्गदर्शन करें, हम आपसे ये अपेक्षा और निवेदन करते हैं। हाँ जी, सबसे पहली बात तो हमने ये देखा है कि वास्तव में कहीं ना कहीं पे चूक जरूर है, कहीं चूक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है लापरवाही जरूर हुई है। और जिन्होंने भी लापरवाही बरती है तो वो जरूर से इसकी चपेट में आए ही हैं। खैर, कई, क्योंकि हमने एक थे जो हमारे संपर्क में थे, एक सज्जन, और बहुत वो सावधानी बरतते थे। हमने उनको पूछा कि आप तो इतनी सावधानी रखते थे, इतना सब कुछ करते थे, फिर भी आपको कैसे कोरोना हो गया? तो उन्होंने बोला कि मैं अपनी तरफ से सब रख रहा था, लेकिन एक व्यक्ति थे जो नहीं कर रहे थे, तो उनको कोरोना था और उनको समझाने के पीछे ही मेरा पूरा समय चला गया कि आप ऐसे नहीं, आप ऐसे करो। और उस समय पर मुझे ध्यान ही नहीं रहा और मैंने मास्क पहना नहीं था, और इसके लिए उसी समय वो मेरे अंदर आ गया हो। तो मतलब देखा जाता है तो कहीं ना कहीं तो लापरवाही जरूर हुई है, तभी ही उसका असर हुआ है। दूसरी बात, हमारे शरीर की इम्यूनिटी अगर कम है तो भी, अगर हम जब ऐसे फील्ड में रहते हैं और जहां पर हम पूरा अटेंशन दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि शरीर की इम्यूनिटी कम है, तो इसके लिए भी वो कोरोना का इफेक्ट हो जाता है। तो इसलिए अपनी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने की सावधानी बरतना, उसको भी बढ़ाते रहना, ये भी बहुत जरूरी है। वन फैक्टर ये भी करना है। तीसरी, अगर इम्यूनिटी भी अच्छी है और सब कुछ ध्यान रखते हुए उसके बावजूद भी अगर कुछ हो रहा है, तो फिर तो ये सिचुएशन ऐसी है जो पहले भी हमारे कंट्रोल में नहीं थी, अभी भी नहीं है। तो ये हमारे ही कोई कार्मिक अकाउंट है, जिसके कारण वो हम, उसके शिकार हम बने हैं।
लेकिन वो भी जो इफेक्ट आया है वो शरीर तक आया है, अगर हम उसको मन तक नहीं लाने दें, क्योंकि अगर हार होती है तो वो जब मन से हारते हैं तभी हार होती है। तो इसके लिए अगर हम मन से नहीं हारे, अगर शरीर तक आ भी गया इफेक्ट, कोरोना का असर हो भी गया, लेकिन अगर मन से घबराए नहीं और उसका फिर से जो भी हमें इलाज करना है उसको हम खुशी, अपनी मन की खुशी की अवस्था बनाए रख करके उसका जो इलाज करना है उसको खुशी खुशी करते रहे परमात्मा की याद में, तो हम उस पर विजय जरूर प्राप्त करते हैं। और अगर हम अपनी मन की अवस्था बना के रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उसके बाद भी ऐसा एक स्टेज आ जाता है कि भाई चलो इस कोरोना के ऊपर हमने मन से तो जीत पा लिया, लेकिन उसने तन के साथ ऐसा कर दिया, क्योंकि कभी कभी बहुत अगर ऐसा होता है कि तन के अंदर में एकदम वो हो गया है और बहुत सीरियस स्टेज है, लेकिन मन की अगर अवस्था अच्छी बना करके रखते हैं और फिर भी अगर तन त्यागना पड़ता है, तो वो उस आत्मा की आगे की यात्रा जो है वो बहुत ही सुखद होती है। तो उसने जो मन की अवस्था अच्छी बना के रखी है, उसके कारण उसने अपने अच्छे संस्कार अपने साथ वो लेकर गया है या गई है, और उसके कारण आगे की यात्रा में उसको आगे का जो जन्म है वो बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छा जन्म उसका निश्चित है ही है। इसलिए परमात्मा हमें कर्मों की गुह्य गति बताते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह बहुत ही अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, और जो होने वाला है वह अच्छे से अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे ही कर्मों के अनुसार हमारे लिए हो रहा है। तो इसलिए मेरे कर्मों अनुसार जो भी सिचुएशन आज मेरे सामने है वो मेरे लिए बिल्कुल सही है, मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर उसी स्थिति में, इसी को ही कहते हैं पॉजिटिव दृष्टिकोण, और अगर हम इसी पॉजिटिव दृष्टिकोण में रहेंगे तो हमें ये ज्ञान रहेगा कि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और आत्मा को एक चोला छोड़ दूसरा चोला वस्त्र धारण करना ही है। जब तक उस आत्मा का रोल का पाठ है, जब तक उसका हिसाब किताब है, तब तक ही वो आत्मा इस देह में रहेगी। कोई भी परिस्थिति तो एक बहाना है, चाहे आज के समय पर कोरोना है, और अगर कोरोना नहीं होता तो कोरोना के पूर्व भी परिस्थितियां थी, जैसे कि हार्ट अटैक, कैंसर, जो भी परिस्थिति है, जो भी बीमारी है, ये भी एक कहते हैं ना कि एक एक्सक्यूज कहें या एक मौका कहें, एक हिसाब किताब कहें, जो सामने आ जाता है और वो जैसे ही चुकतू होता है, या तो अगर उसकी उम्र लिखी है तो फिर वो उस पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ता है, और अगर वहीं पे हिसाब किताब चुकतू होना है उसी से, तो फिर वो आत्मा वो देह त्याग करके प्राण छोड़ देती है। तो इसलिए जो कुछ भी हो रहा है हर एक के कर्मों के अनुसार ही सब कुछ हो रहा है, और अगर मेरे साथ भी जो हो रहा है वो मेरे ही कर्मों के अनुसार सब हो रहा है। तो जब ये ज्ञान का हम चिंतन करते हैं, इस ज्ञान के नजरिए से हम देखते हैं, तो हम प्रेजेंट में जीना सीखते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो पास्ट हो गया, लेकिन प्रेजेंट में मुझे अच्छे कर्म करना है, प्रेजेंट में मुझे ऐसे कर्म करना है, ऐसे बीज बोना है श्रेष्ठ कर्मों का, ताकि मेरा भविष्य अच्छा हो। तो आज अगर कोरोना हो गया है मुझे, तो वो मेरे कोई पास्ट के कर्मों का फल है, जो मैं आज इस परिस्थिति का शिकार बनी हूँ। लेकिन प्रेजेंट में मुझे ऐसी अपनी अवस्था श्रेष्ठ रखनी है ताकि आगे की यात्रा जो मेरी है वो अच्छी हो, वो चाहे शरीर में हो या दूसरे शरीर में हो, लेकिन वो मेरे लिए सुखद हो। उसके लिए मुझे प्रेजेंट में जो भी करना है, हंसते हंसते खुशी खुशी वो अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करना है, और वो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की याद से, परमात्मा की शक्ति से, क्योंकि हमारी शक्ति लिमिटेड है, हमारी सोच एक लिमिटेड है। हम थोड़ा सोचते हैं
फिर हम परिस्थिति के शिकार हो जाते हैं, फिर हम पॉजिटिव सोचते हैं, फिर परिस्थिति नेगेटिव के शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए अगर हम सदा पॉजिटिव की शक्ति चाहते हैं हमारे अंदर, तो हमें अपने आप को चार्ज करना होगा उस पावर हाउस से, उस पावर बैंक से अपने आप को चार्ज करना होगा, जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं। और वो पावर हाउस परमपिता परमात्मा है, जो सदैव पॉजिटिव है, सदैव प्रेम का सागर है, सदैव शांति का सागर है। और जब हम उससे अपनी बुद्धि का योग जोड़ के अपने आप को चार्ज कर लेते हैं, तो हमारे अंदर वो खुश रहने की, ऐसी परिस्थिति में भी खुश रहने की, पॉजिटिव रहने की, उसमें भी क्रिएटिव रहने की, उसमें भी इनोवेटिव रहने की एक शक्ति हमारे अंदर आती रहती है, जिससे हम खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं। एक बहन जो डॉक्टर है और उसको एक अचानक से ही जो है उसको पीठ के पीछे गांठ हो गई थी और उसको पता चला कि शायद ये कैंसर की गांठ है। और एक के बाद एक परिस्थिति आ रही थी और इस कोरोना काल में अब वो कैसे उसका इलाज करवाए, क्या करे, लेकिन पॉजिटिव उसको एक ही बात कहा, जो भी हो रहा है हमारे आपके ही कर्मों का ये फल है, इसलिए उसको आपको हंसते हंसते चिपटू करना है और प्रेजेंट में आपको श्रेष्ठ कर्म करना है और आपको खुशी खुशी इसको पार करना है। और वो एकदम हंसते हंसते रही और पॉजिटिव रही, इस विश्वास के साथ कि सब कुछ जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है और सब अच्छा ही होगा। और उसके आगे दरवाजे खुलते गए। उसके एक इतना अच्छा एक डॉक्टर आ गया कांटेक्ट में जो इसका स्पेशलिस्ट था, और वो रह रही थी पुणे में और डॉक्टर था अहमदाबाद में। अब पुणे से अहमदाबाद जाना इस कोरोना के समय पर ये भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन था, लेकिन बस पॉजिटिव रही कि सब अच्छा ही होगा। और क्या हुआ कि उसके कांटेक्ट में उसकी एक पेशेंट ऐसी आई जो उसने कहा, जिस दिन उसको अहमदाबाद निकलना था उसी दिन उसने कहा कि मैडम आप चिंता नहीं कीजिए, अहमदाबाद में हमारा फ्लैट खाली पड़ा है, आप वहां पे फुल फैमिली आप वहां रहिएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा कार ड्राइवर सब कुछ आपके लिए अवेलेबल रहेगा। और उसी दिन उसको वो मैसेज आया और उन लोग निकल रहे थे और उन लोग पहुंचे अहमदाबाद। वो हॉस्पिटल में ऑपरेशन भी हुआ, सब कुछ हुआ। एंड उसके पॉजिटिव दृष्टिकोण ने उसको इतनी मदद की, उसकी वो परमात्मा की शक्ति के साथ जो उसका कनेक्शन था उसकी मदद से, कि आज वो उसने रिकवर कर लिया है। और उसके पेरेंट्स उसके साथ थे, उनको भी कोरोना हो गया था लेकिन उन्होंने भी रिकवर कर लिया एंड एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन फॉर हर। तो कई ऐसी आत्माएं भी हैं जो ग्रसित हुई हैं और अगर उन्होंने देह त्याग भी कर लिया है तो हम तो यही कहेंगे कि रोने के बजाय, दुखी होने के बजाय उस आत्मा के लिए यही सोचना है कि उसके लिए ये जो भी हुआ वो उसके हिसाब से, उसके कर्मों के अनुसार वो बहुत सही हुआ है और उसकी आगे की यात्रा अभी सुखद हो, उसके लिए हमें दुआ करनी चाहिए। जब और दुख वाइब्रेशंस, अगर हम दुखी वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे तो वो आत्मा ऑलरेडी शरीर छोड़ करके अपने आप को एक महसूस कर रही है कि पता नहीं उसका क्या होगा, एक एंजाइटी में महसूस कर रही है। उसको उस समय पर शांति का दान देना जरूरी है। तो इसलिए दुख के वाइब्रेशंस देने के बजाय, दुखी होने के बजाय हम उसके लिए क्या अच्छा सोच सकते हैं, उसको क्या दुआ दे सकते हैं, उसकी क्या अच्छाइयां हुई थी उसके जीवन काल में, वो सोचें और वो वाइब्रेशंस उसको दें, तो वो उस आत्मा को सशक्त करेगा और उसकी आगे की यात्रा के लिए उसको दुआएं देंगे तो उसकी आगे की यात्रा में भी उसको सुख का अनुभव होगा। तो इस प्रकार से हर हाल में हमें अपने आप को पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव ही सोचते जाना है। थैंक यू। थैंक यू दीदी। अभी मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है, अभी तो किसी ने वैसे पूछा नहीं है लेकिन मैं सभी की तरफ से पूछना चाहूंगी कि हमें पता चल गया कि हमारा कार्मिक अकाउंट है, लेकिन हम अपनों को बचाना चाहते हैं, हमारा ये थिंकिंग है
कि हमारे अपने जाए ना हमसे छोड़ के, हमें पता है कि सब कुछ है। तो ऐसे में हम क्या कोई रिजॉल्वमेंट अपने अकाउंट के लिए कर सकते हैं? सबसे पहली बात कि हमें ये कभी नहीं सोचना है कि चलो कार्मिक अकाउंट है, एक ये नॉलेज है, एक अवेयरनेस है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम सब प्रयास छोड़ दें, कुछ करें ही नहीं। बचाने के जो भी प्रयास करने वो तो करते ही रहना है, क्योंकि पुरुषार्थ तो हमें अच्छाई का करते ही रहना है। एक बचाने का प्रयास भी एक बहुत बड़ी सेवा है, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव अप्रोच है। तो इसलिए पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव कदम उठाते रहना है। जो बचाने के प्रयास है वो भी करते ही रहना है, और करते हुए हमें उस आत्मा के लिए क्या बेस्ट हम कर सकते हैं वो हमें जरूर से जरूर करना है, और यही संकल्प रखना है कि सब अच्छा ही होगा। अभी भी अच्छा हो रहा है और आगे भी बहुत 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 अच्छा होगा। उसको भी यही एक मैसेज दें कि आप भी अपने अंदर यही सोचो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ और सब अच्छा है। हमें यही सोचना है उस आत्मा के लिए कि वह स्वस्थ है, जो हम चाहते हैं वही सोचना है। उसके मेन चीज यही है कि हाँ जो हम चाहते हैं हमें वो उनको दे, मतलब उनको वो थिंकिंग में लाना है। पहले तो यही स्टेप है। हाँ, यही वही हमें सोचना है। राइट? तो ये तो हमने पहले जो बात कही वो तो एक अवेयरनेस की बात कही कि जैसे, क्योंकि डॉक्टर उदय साहब ने बताया कि लोग सावधान होने के बावजूद भी कोरोना के शिकार होकर के डेथ्स हो जाते हैं, तो क्या करें? तो हमें वो एक अवेयरनेस होनी चाहिए, उसके लिए मैंने वो बात कही। अब सामने सिचुएशन है, आपके अपने आईसीयू में है ना, और ऑक्सीजन लेवल बहुत लो हो रहा है, सपोर्ट सिस्टम के साथ है ऑक्सीजन के लिए। हमें ये की पॉजिटिव सोचना है कि जो हम चाहते हैं कि वो स्वस्थ हो जाए, उनका ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो जाए, उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाए, तो हमें वही सोचना है और वही कहना है कि वो स्वस्थ हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा है, उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। तो हम जो चाहते हैं वही थॉट्स, वाइब्रेशंस उनको देते जाएं, और उनको भी यही मैसेज करें कि आप भी यही सोचिए ना। तो एफर्ट्स, हमारा पुरुषार्थ पॉजिटिव का ही रहेगा। राइट? और ये सब करते ही हमें कंटिन्यूअस हमें करते रहना है। जरा भी ये नहीं सोचना है कि अरे ऐसा नहीं होगा और कुछ हो गया तो नहीं। थोड़ा भी डाउट, नेगेटिव आएगा तो फिर वो जैसे कहते हैं ना कि अमृत में एक बूंद जहर हो गया तो फिर क्या होगा, वो पूरा अमृत क्या हो जाता है फिर। तो इसके लिए एक भी डाउट का संकल्प तो हमें क्रिएट करना ही नहीं है। बहुत ही फेथ रखना है, फियर का संकल्प ना रहे, फेथ का संकल्प रहे। हमें शिफ्ट करना है हमारी थिंकिंग को फियर से फेथ में, कि ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा है, स्वस्थ हैं, खुश हैं, इम्यूनिटी अच्छी है, ऑक्सीजन लेवल अच्छा है, एवरीथिंग इज ओके। Thank you, Didi, for your enlightened words and sharing our impart knowledge for you and spent a valuable time to us. I must say everyone would be benefited about your valuable suggestion in this time. And thank you for all participants and AISD member for joining us today. Thank you, Didi. Om Shanti. Thank you. So we'll see you next time again, next Saturday. Yes, Didi. हम ये चाहेंगे कि आप इसमें लोग ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे हमारे अंदर जो सेल्फ पॉजिटिव टॉक बनाने की क्या विधियां होती हैं, या हमें पता है जाने अनजाने हमने कुछ भी कर लिया, जो कुछ भी हमारा अच्छा है वो अच्छा है, वो बुरा है कहते हैं, लेकिन उसको रिजॉल्व कैसे करें, हम खुद से कैसे रिजॉल्व कर लें। कि हमें कहते नहीं है कि अगर हमें पता है कि बड़ी चीज आने वाली है लेकिन वो आई इतनी सी, ईश्वर की इतनी मदद मिल गई हमको, है ना, तो ये हेल्प कैसे हमें गॉड से लेनी है, इन सब चीजों पे बातें हों तो ज्यादा बेनिफिट होगा इस समय में।
जरूर से पॉजिटिव सेल्फ टॉक तो बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने आप से हम क्या बातें करते रहते हैं ना, तो वही चीजें का हम देखते हैं कि वो वाइब्रेशन जाता है यूनिवर्स में, और वही चीजें जो है हमें यूनिवर्स वापस देती है। तो इसलिए हमें अपने टॉक को पॉजिटिव रखने के लिए, सेल्फ टॉक को पॉजिटिव रखने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम पॉजिटिव का अध्ययन करें, ये ज्ञान का अध्ययन रोजाना करें। सवेरे उठते ही हम कुछ न कुछ पॉजिटिव मोटिवेशनल टॉक सुने, ज्ञान की बातें सुने, और रात को सोने से पहले भी ये अवश्य करें, क्योंकि रात का अंतिम थॉट ही हमारा सुबह का पहला थॉट होता है। और रात को जो हम सबकॉन्शियस माइंड को फीड करते हैं, वही जो है सबकॉन्शियस माइंड उसका मनन चिंतन करके वो अपने आप को उसका एक स्वरूप बना लेती है, उसकी धारणा हो जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में एक इम्प्रेशन बैठ जाता है हमेशा के लिए। तो इसके लिए रात को सोने से पहले भी हम अपने आप को डिटॉक्स करें, मेडिटेशन में बैठ के पूरा दिन जो कुछ भी हुआ, और कोई ना कोई एक पॉजिटिव थॉट मंत्र के रूप में ले करके उसके बारे में चिंतन करना शुरू कर दे। चाहे एक ही थॉट ले लें, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छे से अच्छा होगा। बस ये एक थॉट को भी अगर मंत्र की तरह ले लें और उसका चिंतन करें, उसकी गहराई में जाए, उसको लिखना शुरू कर दें, उसकी एक डायरी बनाएं, और हर चीज को उसी दृष्टिकोण से देखें, उसका एक चश्मा पहन लें, और उसी चश्मे से हम फिर हर जो भी परिस्थिति सामने आती है, हम उसी चश्मे से उसको देखें, तो आप देखेगा कि एक आदत हो जाएगी हर चीज में अच्छा देखने की, और वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा, और वो एक आत्मा की शक्ति बनती जाएगी, और पॉजिटिव सेल्फ टॉक बढ़ता जाएगा। इसके लिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस करते रहना बहुत जरूरी है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हम लोगों ने थियोरेटिकल नॉलेज और गाइडलाइंस बहुत सी ली है, लेकिन ये प्रैक्टिकल के रूप में कैसे इसे परफॉर्म करें, तो ये प्रैक्टिकल करने के लिए इसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, हमें कॉन्शियसली करना पड़ेगा, क्योंकि एक आदत हो गई है परिस्थिति को देखने की, परिस्थिति का वर्णन करने की, परिस्थिति के बारे में सोचने की। अब हमें कॉन्शियसली एक अपने आप को प्रायोरिटी देना पड़ेगा कि अब से लेकर के एक दृढ़ संकल्प करना होगा कि अब से लेकर के मुझे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही सोचना है। अपने आप से एक वायदा करना होगा, और इसको रिवाइज करते रहना होगा। जब भी पानी पिए, खाना खाए, हर घंटे में 1 मिनट इसको प्रैक्टिकल करने के लिए इसको रिवाइज करते रहना पड़ेगा। आप देखिए, हमें वॉकिंग करने की आदत कैसे बनी? जब हम बहुत छोटे थे, बच्चे थे, तब हम अपने घुटने तले चलते थे। उस समय पर जब हम उठने की कोशिश करते थे, तो हम उठते थे, गिरते थे, उठते थे, गिरते थे। लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया कि नहीं, आप उठ सकते हो, आप चल सकते हो, है ना। और हम अपने पाँव पे हमने खड़ा रहना सीखा, तो और फिर हम उसको रोज करते गए, एक कदम चलाते गए, हमारे को प्रैक्टिस कराते गए, और हमने भी कॉन्शियसली किया। पहले हम बहुत कॉन्शियस होते थे चलने के लिए, एक कदम उठाया, दूसरा कदम उठाना कॉन्शियसली करते थे, लेकिन करते करते धीरे धीरे अभी हम नेचुरली हम चलते चलते खा लेते हैं, चलते चलते बातें कर लेते हैं, चलते चलते क्या क्या काम कर लेते हैं, नेचुरल हो गया। लेकिन शुरुआत में कॉन्शियसली करना पड़ा, बार बार करना पड़ा। तो प्रैक्टिकल में लाने के लिए, उस चीज को, हैबिट को प्रैक्टिकल में लाने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस करने के लिए पहले तो मेरे दिल से आए, दिल से मुझे रियलाइज हो कि हाँ, ये मेरे लिए जरूरी है, ये अभी नीड ऑफ द आवर है।
अभी मुझे इसको प्रायोरिटी देना है, इम्पोर्टेंस देना है। जब तक रियलाइजेशन नहीं आएगा तब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। चाहे कितना भी सुन ले आप, कितना भी कोई कह दे आपको, लेकिन आपके अंदर जब तक आपने रियलाइज नहीं किया तब तक आप उसको प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे। इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए भी मुझे सबसे पहले इस बात को रियलाइज करना है कि दिस इज वेरी नेसेसरी फॉर मी। आज आप देखिए कोरोना के लिए भी प्रिकॉशंस जब शुरू में आए कि मास्क पहनना, ये करना है, वो करना है, लोगों ने बहुत लाइटली ले लिया, उसको इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे केसेस उनके घर में होने शुरू हो गए तब फिर वो रियलाइज हुआ कि नहीं नहीं, ये तो बहुत ही भयंकर बीमारी है, मास्क तो पहनना ही पड़ेगा, सैनिटाइज तो करना ही पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग तो करना ही पड़ेगा। रियलाइजेशन जब तक नहीं आता है, कितना भी कोई न्यूज दे दे, मैसेज दे दे, लेकिन वो प्रैक्टिस में नहीं आता है। इसलिए अब हमने रियलाइज नहीं किया और हम उसको प्रायोरिटी दे करके कॉन्शियसली नहीं करेंगे, प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, तो फिर हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, किसी और को नहीं, लेकिन हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। इसके लिए हमें रियलाइज करके इसको प्रायोरिटी दे और प्रायोरिटी दे करके इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर, तो प्रैक्टिकल में आ ही जाएगा। थैंक यू। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, अपना YouTube भी है डॉक्टर BK सुनीता दीदी, आप उसमें भी जा करके जो है YouTube में सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस आदि सब शेयर कर सकते, देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। उसका लिंक अगर आपको इसमें चैट में दे दूं मैं। जी आ गया ना चैट में? जी आ गया। चैट में भी क्वेश्चंस है क्या? गौरव, चैट में क्वेश्चंस हैं क्या? क्वेश्चंस नहीं है। नहीं, अच्छा, कमेंट है खाली। जी एक कमेंट आया। और दीदी एक क्वेश्चन मैं पूछूं क्या आपसे? हाँ जी, पूछिए। जैसे एक्चुअली इस टाइम में परिवार में मेरे 2 बच्चे हैं, तो स्कूल का उनको काफी कुछ रहता है, तो स्कूल का काम नहीं करते हैं। और जैसे छोटा वाला है, उसने अभी स्कूलिंग अटेंड नहीं करी है, कभी भी स्कूल में क्लास में बैठ के अभी नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए तो ये सब हंसी मजाक है, क्लास ऑनलाइन क्लासेस। तो वो जब मना करते हैं कि उनके लिए क्लास तो हंसी मजाक की है, तो हम उनको कैसे डील करें? ये मैं कभी कभी नहीं कर पाता हूँ, तो मैंने सोचा कि इस बारे में थोड़ा सा। बच्चों को जो है ऑनलाइन में एक बार अगर वो उसको खेल समझ करके उसका आनंद ले रहे हैं, तो आप भी उसके साथ एक बार खेल समझ करके उसका आनंद एक बार उसकी एक फ्रीक्वेंसी लेवल जो है उस पे आप आ जाओ, और फिर उसके बाद आप उसको प्यार से, धीरज से बातें भी बता दो कि भाई ऐसे ऐसे करेंगे तो ही उसका फायदा है, ये करेंगे तो फायदा है, तो वो बच्चा जरूर समझेगा। लेकिन डांट से करेंगे तो वो बिल्कुल नहीं समझेगा। उसको बड़े प्यार से टैक्टफुली उसको आपको बताना रहेगा। ऐसा मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे, जैसे जैसे मैं अपने टाइम की बात करूँ, तो हमारे जो पेरेंट्स कहते थे या आज भी कहते हैं, जो भी हमारे बड़े हमसे कहते हैं, उसको हम सीरियसली सुनते हैं और लाइफ में इसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बट आजकल के जो बच्चे हैं,
इसको स्मार्टनेस कहें या ओवर स्मार्टनेस कहें, वो सुनते तो हैं हमारी बात पूरी, बट उनको पता है कि उनको बस हमारे सामने ही बस हाँ करना है और फिर वो अपने मन की ही करते हैं। तो कभी सोचना पड़ता है कि उनको डील करने के लिए किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाई जाए। तो इसके लिए पहले तो आपको उसके प्रति एक एटीट्यूड बनाना पड़ेगा बच्चे के लिए, कि आप जो चाहते हो वो आप उसमें देखना शुरू कर दो कि ये बहुत आज्ञाकारी है, ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये जो है मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करता है ना। तो आप जो चाहते हो ना वैसा ही उसके प्रति आप सोचना शुरू कर दो और वैसा ही उसको देखना शुरू कर दो। तो पहले आपको ये होमवर्क अपने अंदर करना होगा, अपनी एटीट्यूड उसके लिए इस प्रकार की करनी होगी कि जो आप उसमें देखना चाहते हो वही आप अपने उसके अंदर आप अपने आप से बातें करो, अपना सेल्फ टॉक वो क्रिएट करो और वो वाइब्रेशन उसके पास जाएगा। आप देखिए थॉट की बहुत बड़ी पावर होती है, थॉट के वाइब्रेशंस की बहुत बड़ी पावर होती है, जो हम बोल के नहीं कर पाते हैं ना, हमारे वो वाइब्रेशंस कर देते हैं। तो इसके लिए आज का जमाना नहीं रहा है कि हम बोल करके कुछ करें और वो सुने, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें भी अच्छा स्मार्ट बनना है और स्मार्ट इसमें बनना है कि हमें अपनी थिंकिंग को, अपने सेल्फ टॉक को वो क्रिएट करना है जो हम उनसे चाहते हैं। और ये आप करके देखिए, ये एक्सपेरिमेंट आप अभी से ही शुरू कर दीजिए। आप क्या चाहते हो कि वो ऑनलाइन सिंसियरली पढ़े, तो आप अपने आप को यही कहना शुरू कर दो कि मेरा ये जो बेटा है वो तो बहुत ही ऑनलाइन सिंसियरली बहुत अच्छी तरह से ऑनलाइन करता है, पढ़ाई करता है। किसी से भी बात करो, किसी को भी वर्णन करो ना, तो उसके सामने भी यही बोलो कि ये तो बहुत ऑनलाइन जो करता है ना तो बहुत सिंसियरली करता है। ये उस समय जरा भी मत सोचो कि ये तो करता नहीं है तो मैं क्यों बोलूं, कैसे बोलूं, है ना। लेकिन आप चाहते हो कि वो ऐसा करे, इसलिए आपको बोलना और आप ऐसा बोलना शुरू कर दीजिए। आप अपने आप से भी वही बोलिए और उसको भी जब देखो ना तो आप यही कहो कि आप तो ऑनलाइन जब बैठते हो ना तो बड़ी सिंसियर होकर के बैठते हो, मुझे ये बात आपकी बहुत अच्छी लगती है। इसी प्रकार से उसको बोलो। तो वो बोलेगा मैं तो ऐसा करता नहीं हूँ, तो अभी आप बोल रहे हो, तो कहते नहीं मैं, लेकिन मैंने तो आपको वैसा ही देखा है, मैं तो आपको वैसा ही देखता हूँ कि आप तो वैसे ही करते हो। आप अपनी इस बात में कंटिन्यू रहिए जो आप चाहते हो, वही आप रेडिएट करते रहिए। तो आप देखिए कि ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशन उसके अंदर आएगा और वो जो है उसको कैच करेगा। बच्चों में कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है और वो जरूर से ये कैच करेगा और उसके अंदर रियलाइजेशन होगा, और मेरे फादर तो मेरे प्रति इतना अच्छा बोलते हैं, सबको इतना ये करते हैं और मैं ऐसा करता हूँ नहीं, मुझे अभी सिंसियर होके करना है। और ये फैक्ट है, हमने देखा ये एक्सपेरिमेंट फलीभूत होते हुए, इसलिए आपको कह रहे हैं, आप ये करना शुरू कीजिएगा। बिल्कुल दीदी, धन्यवाद दीदी। ओम शांति। दिस इज द स्ट्रेटेजी और ये स्ट्रेटेजी हर जगह अप्लाई होती है। पॉजिटिव सोचना, जो आप चाहते हो वही सोचना, वही बोलना, वही करना। आज अगर ये बच्चे आजकल के जमाने में अगर नहीं सुन रहे हैं, वो इसलिए भी है क्योंकि हम भी उनके प्रति बहुत बहुत नेगेटिव, जो भी उनका नेगेटिव होता है वो देखते हैं और वही वर्णन करते रहते हैं, उसी के बारे में हम सोचते रहते हैं, इसलिए हमारे वाइब्रेशंस ही उनके पास जाते हैं जो वो हमारी सुनते नहीं। पुराने जमाने में हमारे जो पेरेंट्स थे उनके पास पॉजिटिव के अलावा इतना कुछ था ही नहीं, इतना कोई नेगेटिव दुनिया का समाचार ही वैसा नहीं था, ना कुछ ऐसा था। वो बहुत ही पॉजिटिव रहते थे हमारे। जब हम उनके गर्भ में थे तब से ही वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव सोचते थे, तो इसके लिए वो एक असर था और उसके कारण आज हम देखते हैं कि हमारे ये संस्कार थे कि हम आज्ञाकारी थे और उस प्रकार से हम सुनते थे। लेकिन हमने क्या करना शुरू कर दिया, थोड़ा भी कुछ नेगेटिव होता है वायुमंडल में, वातावरण में, बाहर में, बस हम उसको पिकअप करके हमारी वो स्टोरी बन जाती है, सबके साथ हमारी वही वार्तालाप शुरू हो जाती है, वही बोलना शुरू कर देते हैं।
आपस की भी, बड़ों की भी, ना चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे ब्रदर एंड सिस्टर हो, कुछ भी अनबनी हुई, कुछ भी देखा कि मैंने जैसा चाहा उसने वैसा नहीं किया, तुरंत हमने वही बोलना शुरू कर दिया, वही वर्णन करना शुरू कर दिया। तो इसके लिए आजकल की जो जनरेशन है उसके अंदर भी वही सब कुछ आ रहा है। इसलिए व्हाटएवर हम बाहर देख रहे हैं वो हमारे ही विचारों का रिफ्लेक्शन है। इसलिए हमें अगर चेंज करना है तो अपने ही सेल्फ टॉक को चेंज करना है। दैट इज द की डिवाइन आंसर टू ऑल योर टॉक्स, ऑल योर क्वेश्चन। थैंक यू। ओम शांति। Thank you. Didi. Om Shanti.